Hello students, now I am going to start this Unit 1 Java Networking of Advanced Java. Now first of all, it is covered in this chapter number 20 of this book, the complete reference Java 7th edition Herbert Shield. The topics to be covered are this: network basics and socket overview, INET address, TCP IP server and client sockets, datagrams, URL connection. First thing is that we are going to see is network basics. For the networking, we are using this package, first of all, java.net package. Now network programming, what it is, we will see. First of all, it refers to the writing programs that execute across multiple devices in which the devices are all connected to each other. नेटवर्क प्रोग्रामिंग सभी ने सुना होगा. नॉर्मली मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट होकर आपस में किस तरीके से क्लाइंट और सर्वर की तरह एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करना है या रिक्वेस्ट सेंड करना है. सो दैट इज़ डन यूजिंग द नेटवर्क. So here we are using java.net package for that. Now in this packages several different classes are there. The first class is the INET address that represents the IP address of the particular host. Now URL, first next topic, that is it represents a pointer to the resource on the web, www, World Wide Web we can see. Next is URL connection, that represents the communication link between application and URL. TCP, next topic, it is containing the two different classes more, that is server socket class, that is to establish the communication with the clients, and next one is socket, that implements the client sockets. Next is UDP, that is datagram packet and datagram socket. Two classes are there, in which datagram socket is for socket, that is a socket for sending and receiving the datagram packets, and packet here is in the form of message that is to be sent from the sender to the receiver. Okay, now next one, this socket overview. Here we can see the socket होता क्या है, normally end point होता है, ठीक है, for the two-way communication link between two different programs running on the network. मतलब दो अलग अलग प्रोग्राम के बीच में कुछ कम्युनिकेशन कराना हो तो उसके लिए हम लोग सॉकेट यूज़ करते हैं. And for the socket is normally the combination of IP address and port number. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो फर्स्ट कंप्यूटर दिया हुआ है उसका IP एड्रेस और पोर्ट नंबर दिया हुआ है, सेकेंड वाला कंप्यूटर का भी IP एड्रेस और पोर्ट नंबर दिया हुआ है. जो भी जिससे कनेक्ट करना चाहता है तो उसका पोर्ट नंबर यूज़ करके फाइनली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा और उससे फिर फाइनली रिस्पॉन्स मिलेगा. राइट, सो दैट इज़ द थिंग that is done through this socket. Now next thing is client server communication. Here the two machines are there that must connect. First of all, this server is here. The server is connecting to this client. The server waits for the connection. The client will send the request, so it will initiate the connection request to the server. Then server will respond to the client request, and finally the communication is established through this socket we can see here. Now here the socket overview is again shown here. The server is what, just like an ordinary program running in a computer. Each computer is equipped with some ports. बहुत सारे ports होते हैं अलग अलग. तो सर्वर जो भी पोर्ट नंबर मतलब सिलेक्ट करता है वही क्लाइंट को सिलेक्ट करना होगा ताकि कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो सके. दैट इज़ द सीक्रेट पार्ट ऑफ दैट कम्युनिकेशन. We can say the computer, this is suppose here this is a computer where the server is running, and suppose this is the server. The server now connects to one of the ports. See, we can see here the server is trying to connect one of these ports. The process is called binding. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग बोलते हैं. जो भी ये सर्वर किसी एक पोर्ट को सिलेक्ट करता है कम्युनिकेशन के लिए. द कनेक्शन जो फाइनली जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड अ सर्वर सॉकेट. और सर्वर सॉकेट के लिए हम लोग कोड किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट द सर्वर सॉकेट. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, SS इज इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट. पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, सपोज इसका पोर्ट नंबर है 1234. 1234 इज अ पोर्ट नंबर दैट इज़ प्रोवाइडेड. नाउ नेक्स्ट, सर्वर इज़ वेटिंग फॉर अ क्लाइंट मशीन टू कनेक्ट. अब सर्वर जब कनेक्ट हो गया पोर्ट के साथ, अब वो क्लाइंट का वेट करेगा, राइट. तो
क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो सेम पोर्ट नंबर के साथ उसको सेंड करना होगा. So in the next step, the client connects to this port of the server's computer. The connection is called socket. तो उसका सर्वर सॉकेट होता है, जो क्लाइंट साइड से होता है, दैट इज़ द सॉकेट. उसका एक ऑब्जेक्ट जैसे एस क्रिएट किया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू न्यू सॉकेट. ब्रैकेट में लिखना है www.hgc.org, दैट इज़ द होस्ट नेम. और यहाँ पे पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, सेम पोर्ट नंबर विल बी देयर, दैट इज़ गिवन बाय द सर्वर फॉर द कम्युनिकेशन. अब जब ये सर्वर क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करता है तो पोर्ट नंबर चेक होता है, उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है दोनों के बीच में, राइट. एंड फाइनली आफ्टर द पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इज ओवर, देन इट विल वेट फॉर द नेक्स्ट क्लाइंट. नाउ हियर वी कैन सी द फर्स्ट थिंग, दैट इज INET एड्रेस. हियर java.net पैकेज यूज करते हैं इसके लिए. दिस क्लास रिप्रेजेंट्स एन इंटरनेट प्रोटोकॉल IP एड्रेस हियर. एंड द java.net INET address class provides the methods to get an IP of host name. Okay, now here these are the several methods that we can see here. The first one is get by name. Get by name से क्या मिलेगा? We will get the IP address of the particular host name. Then get localhost, it will return the address of the localhost. Next thing is get host name. That is also method that is in the form of string. It will return the host name of the IP address. Next is get host address. It will return the IP address in the string format. Next is toString. That will convert that particular IP address to a string format. Now boolean equals means true or false, whether it will compare whether the object is against the specified object or not. Now INET एड्रेस, तो गेट ऑल बाय नेम. अगर एक से ज़्यादा होस्ट अगर अवेलेबल है तो इट विल रिटर्न एन एरे ऑफ इट्स IP एड्रेसेस बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगर्ड नेम सर्विस ऑन द सिस्टम. और गेट लूप बैक एड्रेस, तो रिटर्न्स द लूप बैक एड्रेस. तो लूप बैक एड्रेस मतलब होता क्या है, अपने खुद के सिस्टम के अंदर कुछ कम्युनिकेशन करना हो तो उसके लिए लूप बैक एक एड्रेस एक पर्टिकुलर रिजर्व रहता है, दैट इज़ 127.0.0.1. दैट इज़ अ पर्टिकुलर रिजर्व फॉर दिस लूप बैक. ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप लोग डायरेक्टली पिंग करोगे तो भी आप लोगों को उसमें मतलब आप लोगों को मैसेज रिसीव और सेंड का कुछ मतलब पूरा एक डिटेल प्रोवाइड करेगा वो. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट दिस नाउ हाउ इट इज़ वर्किंग. फर्स्ट ऑफ ऑल now we will see here how this INET address program is working. We will see here through this. Now first of all we can see here I have opened this window, this folder of all the programs. First of all we have to write here above in the above CMD. When I will write CMD, it will directly provide that link where the programs are available. Now after that I have to compile that program that I have named as id.java, that is INET address demo. ओके, INET address का प्रोग्राम है. तो ये हम लोगों ने इसके अंदर कंपाइल कर लिया, कंपाइल हो चुका है. अब कंपाइल करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके अंदर ये प्रोग्राम है. ये प्रोग्राम आप लोग देख सकते हो इसके अंदर. सो दिस इज़ अ प्रोग्राम. First of all I will explain this INET address. First of all we have taken the class, the object is created for this class. उसके अंदर पर्टिकुलर होस्ट नेम प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि है यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे पर्टिकुलर होस्ट नेम इज़ प्रोवाइडेड हियर www.hgc.org. here it is given. Now second thing I want to know what is the local host. local host मतलब जो सेम सिस्टम जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ तो उसका अगर कुछ डिटेल्स, अगर उसका IP एड्रेस चाहिए हो तो we have to write this method, and that method is to be provided on this IP address on this INET address object. So IP.get localhost I have written here for that. Next is host name. To get the host name I have to write IP.get host name. तो जिस ये पर्टिकुलर जो होस्ट नेम हम लोगों ने जो प्रोवाइड किया वो यहाँ पे एज अ नेम प्रोवाइड करेगा.
और जो होस्ट हम लोगों ने दिखाया उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, IP.get host एड्रेस। तो जो भी होस्ट नेम लिखा हुआ है तो उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग इज लूप बैक एड्रेस। टू गेट लूप बैक एड्रेस वी हैव टू राइट दिस मेथड गेट लूप बैक एड्रेस, एंड आफ्टर we have to write all this in the try part, as there can be some exception. For to throw that exception we have to catch that exception first of all. If there exception will be there, it will write directly what is the exception there, whether the internet is not there, some type of exception can be there, तो वो catch करके वो exception आपको print as a message print करके देगा अगर होगा तो। Now we will see the program. Now we will see here this particular part. Now I will run this program using this command java space id. Now after this you can be able to see here, this is the particular output we are getting for this program. First thing is localhost, as the name is ParthPC, and the IP address is also given here. Host name here it is given, IP address जो provide किया हुआ है जो भी है वो होस्ट का वो यहाँ पे प्रोवाइड किया है। लूप बैक एड्रेस जैसा मैंने आपको बताया था लोकल होस्ट के अंदर ही वर्क करता है और उसका ये रिजर्व्ड होता है। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर आउटपुट दैट वी विल गेट आफ्टर रनिंग दिस प्रोग्राम फॉर आईनेट एड्रेस। ओके, नाउ अगेन गोइंग बैक टू द slide show now. Now we will see here how the TCP/IP particular part is working. TCP/IP is a protocol in which the particular client and server are sending the request and finally getting some communication. So here we will see here the first of all the server socket class will be there, the first thing. So server socket class is to create the server socket. So that is the server socket class. This object is used to establish the communication with the clients. The server socket int port यहाँ पे लिखा हुआ है. So we have to provide the port number here if we are using this constructor that creates a server socket bound to the specified port. Next thing is method that it is providing accept. एक्सेप्ट मतलब कुछ क्लाइंट की अगर रिक्वेस्ट आती है तो ये एक्सेप्ट करने का काम करता है. सो हियर द पर्टिकुलर पार्ट इज रिटर्न्स द सॉकेट एंड एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट. सो एक्सेप्ट जो मेथड होगा वो सर्वर सॉकेट की तरफ से होगा बिकॉज द रिक्वेस्ट इज सेंड थ्रू द क्लाइंट. अब यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जैसे सर्वर सॉकेट का एस एस इज इक्वल टू न्यू. यहाँ पे पोर्ट नंबर प्रोवाइड करना है, उसका एग्जांपल में लिखा हुआ है यहाँ पे. सपोज 4x1 दिया हुआ है तो 4x1 उसका पोर्ट नंबर से कनेक्ट किया है इसने. नाउ आफ्टर दैट सॉकेट क्लास वी कैन सी हियर. सॉकेट क्लास के अंदर दो चीज़ें होती है, एक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है. सो टू थिंग्स वी हैव टू प्रोवाइड फॉर कम्युनिकेशन विद द सर्वर. सो हियर सॉकेट फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, two different constructors are there. One is simple socket that will create an unconnected socket. और उसके अंदर अगर आप लोग आईनेट एड्रेस एंड इंट पोर्ट दो पर्टिकुलर पैरामीटर्स अगर प्रोवाइड करते हो तो इट क्रिएट्स अ स्ट्रीम सॉकेट एंड कनेक्ट्स इट टू द स्पेसिफाइड पोर्ट नंबर एट द स्पेसिफाइड आईपी एड्रेस. नाउ द मेथड वी कैन सी हियर. नाउ द पब्लिक input stream get input stream we can see here, it returns the input stream attached with this socket. Next is output stream, that is get output stream returns the output stream attached with this socket. Next is socket. Now how to create the socket using Java. So first of all we have to write this socket class and we have to create this object for that. Now after that we have to provide the particular IP address here and the port number here. Either the domain name can also be there. जैसे यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया हुआ है सॉकेट एस नाम से क्रिएट किया हुआ है, एस इज इक्वल टू न्यू सॉकेट. यहाँ पे लोकल होस्ट मतलब सेम सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है एंड हियर द पोर्ट नंबर इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड जो कि यहाँ पे ये सर्वर सॉकेट के अंदर 4x1 है तो यहाँ पे भी 4x1, तो सेम पोर्ट नंबर विल बी देयर फॉर द कम्युनिकेशन टू बी एस्टैब्लिश्ड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, so these are the things that we can see in TCP IP and client and server sockets. Now here first of all I will show you the particular programs for this server. Now first of all this is the my server part that we can see here. Okay,
दिस इज़ अ माई सर्वर पार्ट दैट वी कैन सी हियर। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्वर सॉकेट इज़ हियर एसएस। यहाँ पे एक सर्वर सॉकेट क्रिएट किया है, 1 2 3 4 पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। सेकेंड थिंग इज सॉकेट। यहाँ पे जो सॉकेट कौन सा है, ये सॉकेट कहाँ से आ रहा है, ये सॉकेट के लिए हम लोगों ने क्लाइंट वाला पार्ट भी कनेक्ट किया हुआ है। ये सॉकेट वहाँ से मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो सॉकेट वहाँ से ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ये वहाँ से उसके थ्रू हो रहा है। तो सॉकेट उसका भी क्लास एक उसके अंदर मेथड किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज सर्वर सॉकेट इज एक्सेप्टिंग द रिक्वेस्ट through the client. So this is a client socket and SS, this is an object of the server socket. So SS is accepting the request that is sent by the client. So for that we are writing ss.accept. नेक्स्ट इज इनपुट स्ट्रीम। अब इनपुट स्ट्रीम DIS ये भी सॉकेट के ऊपर ही मेथड यूज़ करता है, क्लाइंट सॉकेट के ऊपर। बिकॉज क्लाइंट सॉकेट जो आउटपुट जो प्रोवाइड करता है वो अपने प्रोग्राम में प्रोवाइड करेगा और इसके अंदर वही आउटपुट इनपुट की तरह हम लोग रिसीव करेंगे, राइट। सो हियर इट इज़ गिवन एज एन इनपुट। So here s dot get input stream, for that method we have to write s means client socket here. This is an object of client socket. Next thing is string str. तो इसके अंदर जो भी मैसेज जो हम लोग वहाँ पे सर्वर क्लाइंट साइड में लिखेंगे वो यहाँ पे वो रीड करेगा, ठीक है, राइट करेंगे वो यहाँ पे रीड होगा। फॉर दैट वी हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर मैसेज इनटू स्ट्रिंग, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हियर स्ट्रिंग। So then DIS, that is this is a object of this data input stream dot read UTF, तो उसको रीड करेगा और उसको फाइनली उसको प्रिंट कराने के लिए हम लोग ये लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैसेज इज इक्वल टू प्लस STR। तो एस डॉट क्लोज लिखा हुआ है। नाउ वी इफ देयर विल बी एक्सेप्शन, फॉर दैट वी हैव टू राइट दिस कैच एंड ट्राई पार्ट, so exception will be printed as a message using this particular part. Now next part, where we can see the client also. So this is a client flood that we can see here. So here यहाँ पे जो पैकेज यूज़ कर रहे हैं हम लोग देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट का यूज़ लेना इसलिए IOP यूज़ किया हुआ है, .NET नेटवर्क का पैकेज यूज़ करना इसलिए java.net, और स्टार मीन्स जितने भी उसके अंदर जो भी क्लासेस होंगे वो सब इंक्लूड हो जाएंगे। So here same thing we have to use in server also. Now here we can see that socket S जो दिया हुआ है, तो उसके अंदर न्यू सॉकेट, यहाँ पे लोकल होस्ट सेम सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है इसलिए, और 1 2 3 4 सेम पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है। आफ्टर दिस डेटा आउटपुट स्ट्रीम, जैसा मैंने बताया था उसमें इनपुट की था, इसमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा तो उसमें इनपुट मिलेगा। तो आउटपुट स्ट्रीम वी हैव टू क्रिएट हियर, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर उसको आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम लोग को मेथड प्रोवाइड करना है टू गेट आउटपुट स्ट्रीम, s डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, एंड फॉर दैट वी हैव टू राइट द मैसेज। जो भी मैसेज लिखेंगे वो वहाँ पे रीड होगा, तो यहाँ पे राइट किया है, राइट UTF यूज़ करके मेथड, तो उसके अंदर जो भी मैसेज हम लोग जो भी प्रिंट कर रहे हैं उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वो वहाँ पर रीड करेगा, एंड वॉट एवर द एक्सेप्शन विल बी देयर दैट विल बी प्रिंटेड हियर, फॉर दैट ट्राई एंड कैच इज ऑल्सो हियर। नाउ व्हाट वी हैव टू डू दैट वी हैव टू यूज़ द टू डिफरेंट, इसके अंदर ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने देखा ही था, ये बंद करते। अब टू डिफरेंट CMD वी हैव टू टेक, वन इज दिस, ओके, and one more CMD we have to take. So again this is here, यहाँ पे एक आ गया, दूसरा एक यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसके अंदर अब एक साइड पे मैं जावा सर्वर को करूँगा, माई सर्वर, ये माई सर्वर डॉट जावा, उसको कंपाइल किया हुआ है, और एक साइड में मैं क्लाइंट साइड को कंपाइल करूँगा। तो दोनों साइड अलग अलग हो गए, एक साइड सर्वर है और एक साइड क्लाइंट है, तो दोनों सेम दोनों अलग अलग प्रोग्राम्स है, दोनों को रन करना है, कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में होने वाला है, इसके लिए दोनों को रन करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अब क्लाइंट को पहले रन नहीं कर सकते, क्लाइंट को पहले से रन करेंगे तो कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट किसको सेंड करें, तो कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए सर्वर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव टू कंपाइल फर्स्ट ऑफ ऑल दिस server part, right? So we will run this particular part here, my server. Now the server is now ready to connect with the client. Now here this blinking means what it is showing, it is waiting for the client to connect. Now when I will run this client program,
you can see here, this is a client program. Now I am going to run. When I will run this blink, now see when the client रन किया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्लाइंट ने कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट सेंड करी और फाइनली कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हुआ, फाइनली मैसेज यहाँ पे सेंड हो गया. सो यू कैन सी हियर द मैसेज. सो दिस इज द आउटपुट दैट वी विल गेट. द मैसेज इज इक्वल टू हेलो सर्वर. ओके, नाउ this is how the particular part is working. Now we will go through the next part, that is here datagram packets. We can see here. So here this is the particular part of UDP. So first of all we have to create the datagram socket class for that. So datagram socket होता क्या है, that is used for sending and receiving the datagram packets. So datagram here we can see here. So it is basically an information but there is no guarantee of its content, arrival और arrival time. मतलब इसमें कनेक्शन लेस पार्ट होता है, कनेक्शन लेस ओरिएंटेड होता है ये. तो उसकी वजह से कोई गारंटी नहीं होती कि मतलब कि वो कंटेंट जो भी मैसेज हम लोग सेंड कर रहे हैं वो पहुंचेगा ही, वो कंपलसरीली पहुंचेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है. राइट. सो हियर वी कैन सी हियर द डेटाग्राम सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे इट क्रिएट्स अ डेटाग्राम सॉकेट एंड फाइंड्स इट विद द अवेलेबल पोर्ट नंबर. ये वाला ये 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर है, जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो. यहाँ पे ओनली डेटाग्राम सॉकेट लिखा है इसलिए वो डेटाग्राम सॉकेट क्रिएट करेगा और फाइंड सेट विद अवेलेबल, जो भी अवेलेबल होगा लोकल होस्ट में उसके साथ उसको कनेक्ट करेगा. और इंट पोर्ट अगर आप पोर्ट नंबर पहले से प्रोवाइड करते हो तो उस गिवन पोर्ट नंबर पे उसको कनेक्ट करेगा. और पोर्ट नंबर और IP एड्रेस, INET एड्रेस दोनों प्रोवाइड करते हो तो इट विल बाइंड दैट port number and host address, then it will create the datagram socket. Now next here we can see that datagram socket, datagram packet. now it is a message. तो मैसेज है जो हम लोग को सेंड करना है from the sender to the receiver. if you send the multiple packet it may arrive in any order. तो उसका कुछ ऑर्डर नहीं होगा कि पहले कौन सा जाएगा या दूसरा कौन सा जाएगा, ऐसा कुछ ऑर्डर फिक्स नहीं होगा, तो कोई भी ऑर्डर में पहुंच सकता है. now after this we can see here additionally the packet delivery is not guaranteed नहीं होगा कि सारे के सारे पैकेट्स पहुँचेंगे. now for this the constructor here we are using. now first datagram here, यहाँ पे byte array type यूज़ किया हुआ है. now for that we are using the object bar. now int, उसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंथ क्रिएट किया हुआ है. ये जो फर्स्ट वाला है that is buffer for holding the incoming datagram. the second part जो दिया हुआ है that is number of bytes to read. next part, so it creates this is the constructor to receive the packets. okay, now next part यहाँ पे एक और दिया हुआ है जिसमें 4 different parameters है. फर्स्ट जो array है, जैसे बफर है बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बाइट्स टू रीड, दूसरा IP एड्रेस है और थर्ड पोर्ट नंबर है. तो इसमें क्या होगा, इट इज़ यूज टू सेंड द पैकेज. ये रिसीव करने के लिए और ये सेंड करने के लिए, तो 2 अलग अलग है. यहाँ पे आप दिस now we will see the program for this now also. now here first program I will show you for the sender. so this is the particular program that we are using for the sender part. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, डेटाग्राम सॉकेट क्रिएट किया है पहले. राइट. सो हियर फॉर दैट वी आर क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट DS न्यू डेटाग्राम सॉकेट. इसके अंदर पोर्ट नंबर प्रोवाइड नहीं किया, मतलब जो भी अवेलेबल पोर्ट नंबर होगा उसके साथ वो कनेक्ट करेगा. नाउ स्ट्रिंग, यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है, मैसेज सेंट बाय द डेटाग्राम सॉकेट. ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए. ठीक है, सेंडर यहाँ पे है तो ये सेंड कर रहा है, मतलब रिसीव कहाँ पे होगा, रिसीवर साइड में होगा. नाउ INET एड्रेस IP इज इक्वल टू INET एड्रेस डॉट गेट बाय नेम. ये लूप बैक एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ बिकॉज सेम पर्टिकुलर सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं इसके लिए. टू सेंड एंड रिसीव द पैकेज हियर वी आर यूजिंग द लूप बैक एड्रेस. दिस इज अ लूप बैक एड्रेस. नाउ डेटाग्राम पैकेट, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सेंड कर रहे हैं. तो सेंड करने के लिए हमारे पास 4, मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, 4 डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर. तो फर्स्ट इज फॉर द बफर, सेकेंड इज फॉर द number of bytes, third thing is number of bytes here, str.length, और IP that is a IP address. okay, IP address जैसे यहाँ पे दिया हुआ है loop back address वो, और last is the port number. तो यहाँ पे 4 different things are there that we are using for sending the packets. अब यहाँ पे फाइनली सेंड होगा, तो इसलिए उसके सेंड के लिए हम लोग मेथड यूज़ करेंगे ds.send. तो दैट इज सेंड बाय द डेटाग्राम सॉकेट. ओके, सो इसलिए डैश सेंड किया और पैकेट में DP लिखा है, मतलब डेटाग्राम पैकेट यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सेंड हो रहा है. रिसीव होगा तब देखेंगे क्या होता है, और यहाँ पे कनेक्शन क्लोज किया हुआ है. राइट. नाउ वी विल सी द अनदर प्रोग्राम दैट इज रिसीवर प्रोग्राम. हियर इट इज. नाउ दिस इज द रिसीवर प्रोग्राम.
और रिसीवर प्रोग्राम में आप लोग देख सकते हो जावा डॉट नेट पैकेज यूज़ किया हुआ है। डेटाग्राम सॉकेट, पोर्ट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे वहाँ पे 80 दिया हुआ था इसलिए यहाँ पे 80 है फॉर द कम्युनिकेशन टू बी एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे बाइट बफर दिया हुआ है, कितना होगा ओवरऑल 1024, मैक्सिमम साइज उसका प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हियर दैट इज़ गिवन द डी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे दो अलग अलग जैसे पार्ट्स ये, तो फर्स्ट थिंग इज़ बफर एंड सेकेंड इज़ नंबर ऑफ बाइट्स। ओके, सो दीज टू आर द डिफरेंट पैरामीटर फॉर रिसीविंग द पैकेट। ठीक है, तो रिसीव करने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं, ts.receive। स्पेलिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल शो द एरर। ठीक है, तो ब्रैकेट में dp लिखना है। आफ्टर दैट str, जो स्ट्रिंग जो मैसेज जो आ रहा है तो वो किस तरीके से आएगा, तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग उसको स्टोर करेंगे str। तो न्यू स्ट्रिंग यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे, तो dp.getData, तो यहाँ पे जो भी डेटा होगा पैकेट के अंदर वो यहाँ पे रिसीव होगा, तो गेट डेटा 0 दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द मैसेज, एंड उसका जो भी लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग वो पूरा 1 by 1 वो सारे पूरा ओवरऑल मैसेज उसके अंदर प्रिंट करेगा। और फाइनली जब वो स्ट्रिंग के अंदर आ जाता है तो उसको फाइनली हम लोग प्रिंट करेंगे, तो str। सो एंड कनेक्शन इज हियर इज ऑल्सो क्लोज्ड। सो टू साइड क्लोज वी हैव टू डू। उसके अंदर क्या होता था, ओनली सर्वर साइड क्लोज करना पड़ता था, इसके अंदर दोनों साइड से क्लोज करना पड़ता है। राइट, नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम फॉर यू। नाउ यू कैन सी दिस। Now here also we have to see the two different CMD windows will be there. One is for sender and one is for receiver. तो यहाँ पे दो अलग अलग विंडोज़ आ गए, you can see here. Next here यहाँ पे एक और विंडो चाहिए हम लोग को CMD। Okay, so here will be the window. ये तो अलग अलग विंडो आपके सामने है। नाउ आई विल कंपाइल फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटर पार्ट, डी सेंडर। ओके, दिस इज द सेंटर पार्ट दैट आई विल डू। नाउ हियर इन द नेक्स्ट विंडो आई विल कंपाइल द रिसीवर पार्ट। ओके, दोनों कंपाइल कर लिए हम लोगों ने। कंपाइल करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले सेंडर और रिसीवर दोनों को कंपाइल कर दिया। और सेंडर जब सेंड करता है तो रिसीवर होना ज़रूरी है रिसीव करने के लिए, तो रिसीवर को पहले कंपाइल करना पड़ेगा। राइट, सो हियर सो कंपाइल नहीं रन करना पड़ेगा। सो डी रिसीवर यू विल राइट हियर टू रन दैट प्रोग्राम। ओके, सो हियर इट इज़ वेटिंग, नाउ इट इज़ वेटिंग फॉर द सेंडर टू सेंड सम मैसेज or to establish some connection. So here the receiver part is here. Now after this, now here we can see here we will run this sender program. जैसे ही सेंडर को रन करेंगे तो वो मैसेज वहाँ पे सेंड हो जाएगा। We can see here मैसेज सेंड हो गया, आप लोग देख सकते हो। ये जैसे ही सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर का होना पहले ज़रूरी है सर रिसीवर करने के लिए। अगर रिसीवर नहीं होगा तो डेटा पैकेट जो भी होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो रिसीवर को पहले हम लोग को रन करना होगा। तो रन किया, उसके बाद फिर वो वेट कर रहा है अब मैसेज का। तो सेंडर ने जब रन हुआ, तो सेंडर जब रन हुआ तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ एंड फाइनली द मैसेज इज सेंड एंड फाइनली द कनेक्शन इज क्लोज्ड बाय बोथ द साइड, यू कैन सी। ओके, सो दिस इज हाउ दिस UDP प्रोग्राम इज रन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यू कैन सी हियर नाउ another सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट एक और प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। नाउ हियर वी कैन सी हियर URL पार्ट। URL सब लोगों को पता है कि URL क्या होता है, मेन लिंक जो हम लोग लिखते हैं जो भी वेब पेज के लिए या फिर कोई भी वेबसाइट के लिए। सो दैट इज़ वन टाइप ऑफ लिंक। आइदर IP एड्रेस भी हो सकता है या फिर डायरेक्टली कोई वेबसाइट का नाम भी हो सकता है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स एन URL दैट इज़ द पॉइंट्स टू द रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे यहाँ पे फर्स्ट देख सकते हैं हम लोग, दैट फर्स्ट पार्ट इज HTTP, दैट इज़ अ प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे जो ये फर्स्ट ये कोलन से पहले वाला जो पार्ट दिया है दैट इज़ सर्वर नेम और IP एड्रेस बोल सकते हैं। और उसके बाद पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, और उसके बाद जो भी फाइल जो भी हम लोग को एक्सेस करना है उसका नाम प्रोवाइड किया हुआ है HTTP client.html। नाउ हियर नेक्स्ट थिंग इज
कौन कौन सी मेथड है. तो फर्स्ट इज अ कंस्ट्रक्टर that URL that in that particular part we have to provide the particular URL here. It creates a URL object from the string representation. Example URL is equal to new URL. Now इसके बाद HTTP डॉट यहाँ पे जैसे ये पर्टिकुलर सपोज एक URL प्रोवाइड किया हुआ है, सपोज कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पे पब्लिक मेथड यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है जैसे, तो URL कनेक्शन ओपन कनेक्शन यहाँ पे जैसे प्रोवाइड किया हुआ है. थ्रोज इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन दैट वी हैव टू राइट. अगर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन सपोज कुछ होता है तो उसको डायरेक्टली वो थ्रो कर देगा. फॉर दैट वी हैव टू राइट दिस. And finally, how to write this URL connection, that is also written here. For URL connection we have to create some object, and for that we have to write URL dot open connection. Okay, now अब URL को पहले का URL for that we can see here. यहाँ पे URL मतलब ये कि URL कनेक्शन जो है मेन, अभी इसके बाद प्रोग्राम बता तो पहले ये देख लेते हैं. इट इज़ अ सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस दैट रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन एप्लीकेशन एंड URL. तो URL और एप्लीकेशन के बीच में अगर कम्युनिकेशन करना हो तो उसके लिए ये पर्टिकुलर URL कनेक्शन इज़ अ सुपर क्लास. जैसे ब्राउज़र हमारा एप्लीकेशन है और पर्टिकुलर लिंक प्रोवाइड कर रहा हो, तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक जो प्रोवाइड हो रहा है दैट इज़ URL कनेक्शन. तो ओपन कनेक्शन करने के लिए हम लोग को URL प्रोवाइड करना होता है. तो इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास कैन बी यूज बोथ टू रीड फ्रॉम एंड टू राइट टू द रिसोर्स रेफरेंस बाय द URL. सो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जैसे प्रोवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे URL कनेक्शन के अंदर URL प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड URL. नेक्स्ट थिंग इज मेथड दैट इज इनपुट स्ट्रीम. For that we are writing the method get input stream. It returns an input stream that reads from this open connection. Now next is public output stream. उसमें get output stream होगा that will throw the input output exception. Now first thing is it will this get input stream के अंदर input stream return करेगा that reads from the open connection, और इसमें output stream that writes to this open connection. अब इसके लिए हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं. Okay, so here this is the particular program that I have written for this. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. द फर्स्ट थिंग इज़ URL. उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाया सबसे पहले, तो उसमें कॉलेज का नाम, कॉलेज की वेबसाइट का नाम लिखा है HTTP दैट इज़ अ प्रोटोकॉल, और यहाँ पे पर्टिकुलर होस्ट नेम या सर्वर नेम प्रोवाइड किया हुआ है DNS. उसमें पोर्ट नंबर अलग से प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, तो पर्टिकुलर जो भी पोर्ट अवेलेबल होगा उसमें कनेक्ट हो जाएगा वो. तो URL कनेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. फॉर कनेक्शन टू बी क्रिएटेड वी हैव टू राइट URL डॉट यहाँ पे URL डॉट ओपन कनेक्शन हम लोगों को प्रोवाइड करना होगा, राइट. एंड आफ्टर दैट इनपुट स्ट्रीम, तो IST यहाँ पे दिया हुआ है. फॉर दैट ऑब्जेक्ट वी हैव क्रिएटेड, तो गेट इनपुट स्ट्रीम जो भी इनपुट होगा उसके अंदर से हम लोग को मिल जाएगा. जितने भी IP एड्रेसेस जो भी कनेक्टेड होगा वो सब मिलेगा हमको. तो इंट आई, तो I इज इक्वल टू IST डॉट रीड, तो वो जितने भी जो भी हमको इनपुट में मिलेगा वो सबको रीड करेगा एंड फाइनली वन बाय वन उसको प्रिंट करेगा, और कुछ एक्सेप्शन होगा तो उसका यहाँ पे बता देगा. Now we can see here after for running this program we will see here how to run this program. CMD करें हम लोग हैं, राइट. अब इसके अंदर हम लोग पहले सबसे पहले कंपाइल करेंगे उस प्रोग्राम को, दैट इज़ url.java. okay, so this is compilation of this program. Now I will run this program. You can see the output, what will be the output for this program. Now see here for hgc.org इसके अंदर पूरा HTML फॉर्मेट में जो भी हमारे पास पर्टिकुलर पार्ट अवेलेबल है वो पूरा का पूरा इसके अंदर यहाँ पे दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टाइटल 301 मूड परमानेंटली, यहाँ पे देख सकते हो बॉडी सेंटर 301 मूड. तो जो भी पर्टिकुलर HTML फाइल उसका जो भी है मेन, तो वो पर्टिकुलर पार्ट इसके अंदर प्रोवाइड करता है फॉर दैट URL. तो जो भी उसके अंदर जो कनेक्शन के थ्रू जो भी हम लोग को पेज मिल रहा है तो उसका मेन जो पार्ट होगा वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा. ओके, तो यू कैन सी हियर दिस. अब सपोज़ अगर आप लोग देख रहे हो तो इसके अंदर सपोज़ मैं अगर यहाँ पे इसकी जगह पे अगर कोई और वेबसाइट का नाम लिखता हूँ तो उसका कुछ और ही रिप्लाई आएगा. सपोज़ यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, राइट. सो इसके अंदर मैंने इसकी जगह सपोज़ मैं लिखता हूँ google.com लिखता हूँ या co.in लिखता हूँ सपोज़. ओके, सो आई विल सेव दिस प्रोग्राम. आफ्टर दिस यू कैन, अब इसके अंदर फिर से मैं वही CMD वाला पार्ट देखूँगा.
Okay, now here Java C, now URL. Okay, now again I am compiling that program. You can see here. Now I will run that program, so you will see what will be the output for that Google. So this is the particular. So this is where many of the web pages are there, so many of the links are there in that Google. So that's why many so such a long response it is giving for that Google. Okay, so this is how the particular URL connection is done for the specified URL. So now, so this is all about the first unit, that is Java networking. These are all the important questions that can be important for GTO exam. So here you can see, and here you can refer to such all these questions for that. And now thank you for this first lecture of this Java networking. Now I will continue with the next lecture with the unit 2, okay, in the next lecture. Thank you.